हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज। कल हमने क्वेश्चन किए थे 4 आइडेंटिटीज जो हमने प्रीवियस क्लास में किए, उसके बेस पे नाउ वी विल लर्न 4 मोर आइडेंटिटीज टुडे एंड विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फिफ्थ आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है। नाउ इफ देयर आर थ्री टर्म्स देन व्हाट इज दिस? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज द फिफ्थ आइडेंटिटी। Sixth and seventh identity is for cubes. So a plus b whole cube and a minus b whole cube. A plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3ab ब्रैकेट में a plus b. A minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3ab, a minus b. You can open these brackets also, or you can write it like this also. A cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square. Similarly, you can write it this identity as a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square. मैं आपको कहूंगी इसी वे से याद रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस की टर्म है एक प्लस की, तो आपको कंफ्यूजन हो याद रखने में, उसकी बजाय कि आप इसे ब्रैकेट में ही याद रखो, देन यू कैन ओपन एंड राइट द टर्म्स अकॉर्डिंगली। नाउ द लास्ट आइडेंटिटी विच वी विल रीड in this class, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that will be equal to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. You can write these identities with x, y, z also, कि whatever way you like you can write. किसी बुक में इसको x plus y plus z whole square like this दिया होगा, किसी में a b c से दिया होगा। तो जिस वे से आप याद रखना चाहो, इट्स योर चॉइस। दी आइडेंटिटीज को आप कैसे याद रखना चाहते हो, एक्स वाई जेड से, ए बी सी से। तो अब ये कैसे आएगा? अगर आप इन टर्म्स को ओपन करके देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस आइडेंटिटी। तो हमें आइडेंटिटीज के प्रूफ नहीं है कि आपको करके दिखाना है कैसे आया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। So these are 4 new identities जो आपको याद रखनी है, आने वाली क्लासेस में भी काम आएंगी। तो इन टोटल आपको 8 आइडेंटिटीज को याद रखना है। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. Expand each of the following using suitable identities. Now 3 terms are there, so we will use the fifth identity here. A plus b plus c whole square, that is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c and a. So multiply x square, 2 का स्क्वायर 4. दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट कि सिर्फ y का स्क्वायर नहीं होगा, जो साथ में कांस्टेंट टर्म है उसका भी होगा। सो 4 स्क्वायर इज 16, 2 2s are 4, xy, 2 2s are 4, 4s are 16, yz, 2 4s are 8, zx. So this will be the answer for this one. Second part, 2x minus y plus z whole square. You can write it as 2x plus minus y. मतलब आपने माइनस को ब्रैकेट में लिख लिया बिकॉज वी हैव आइडेंटिटी फॉर द प्लस साइन. नाउ यूज द आइडेंटिटी. a is
2x, b is minus y, c is z, plus 2a b. माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट, अगर किसी टर्म के साथ है उसे लगाएंगे, प्लस 2b c plus 2c a. Now multiply the terms. 2 square is 4x square. Minus को दो बार multiply करेंगे, positive term. Now plus minus, minus 2 2s are 4xy. One negative is there, so minus 2yz plus 2 2s are 4zx. So this will be your final answer. Moving to the next one, minus 2x plus 3y plus 2z whole square. Minus 2x plus 3y plus 4z whole square. Yes, sorry, 2z is there, not 4z. Okay, so apply the identity. 5a square plus b square plus c square plus 2a b plus 2b c plus 2c and a. Negative sign is very important. If you want, you can keep bracket here so that आप माइनस को भूलो नहीं कि वो हमें टर्म के साथ लगाना है. माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, 3 square will be 9, 2 square will be 4. One negative is there. 2 2s are 4, 3s are 12, xy plus 3 2s are 6, 2s are 12, yz plus minus, minus 2 2s are 4, 2s are 8, zx. So this will be your answer for the third part. Moving to the next one, 3a minus 7b minus c. 3a minus 7b minus c whole square. So you can write it like this, 3a plus bracket में minus 7b plus bracket में minus c. Now you can apply the identity. 5a is 3a square plus b is minus 7b, c is minus c plus 2a b plus 2b c plus 2c a. So ये माइनस ये वाला जो स्टेप है, दिस इज इम्पोर्टेंट ताकि टर्म के साथ आपका माइनस आए और रॉन्ग ना हो. 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, 7 square is 49 plus c square. One negative term is there. 2 3s are 6, 7s are 42, ab. Two negative signs are there, minus minus plus, 2 7s are 14, pc plus minus minus, 2 3s are 6, ca. So this is your final answer. Moving to the fifth part now. Okay, minus 2x plus 5y minus 3z. Minus 2x plus 3y minus 2x plus 5y minus 3z plus 5y minus 3z whole square. So you can write it like this, minus 2x plus 5y plus bracket में minus 3z, so that sign clear हो कि कहाँ पे कौन सा आना है. So a plus b plus c whole square, a square plus b square plus c square plus 2a b. लिखते हुए बस ध्यान रखना है साइंस का, 2b c. एक माइनस आपने छोड़ा और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. 2c and a. 2 2s are 4, x square, 5 square is 25, 3 square is 9. Now one negative is here. 2 2s are 4, 5s are 20, xy. One negative, 5 2s are 10, 3s are 30, yz
minus minus plus 3 2s are 6 2s are 12 zx. So this is your answer for the fifth part. Moving to the sixth part, 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 whole square. Now we can write it like this, 1 by 4a plus minus 1 by 2b plus 1 whole square. Now apply the identity. Your A is 1 by 4a, B is minus 1 by 2b plus C is 1 plus 2ab plus 2bc plus 2ca. जब यहाँ पे रैशनल नंबर के टाइप में है तो थोड़ा सा ध्यान और देंगे कि गलती ना हो. 1 by 4 है, आप इसको 4 नहीं लिख सकते, तो प्लीज कीप इट इन माइंड. जब इसको करोगे तो ध्यान देना है. 1 a का स्क्वायर 4 4s are 16 प्लस b स्क्वायर 2 2s are 4 1 स्क्वायर. 1 नेगेटिव इज देयर. नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. माइनस ए बी इन द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में बचा 4. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. 1 नेगेटिव साइन इज हियर. b into 1, 2 2s are 4, all terms are positive, so plus a by 2. So this is your final answer for the sixth part. Moving to the next one. Okay. Factorize this. अब मुझे factorize करना है. अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, there are 6 terms, x square वाली, y square, z square, xy, yz, zx. तो ये तो मुझे क्लियर है कि जो फिफ्थ आइडेंटिटी थी उसी की राइट हैंड साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी. नाउ लेट्स सी क्या करना है. नाउ 4 आई नो 2 का स्क्वायर होता है, यस. 9 आई नो 3 का स्क्वायर होता है, यस. 16 आई नो 4 का स्क्वायर होता है, राइट. अब ध्यान देने वाली बात जो है, यहाँ पे 2 टर्म्स माइनस की है, नेगेटिव है. अब आपको ये देखना है जो 2 टर्म्स नेगेटिव हैं उनमें कॉमन क्या है. तो दोनों टर्म्स में z है, वेरिएबल z इज कॉमन. तो जो z वाली टर्म है इसके आगे माइनस साइन आएगा. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर कि इसके आगे माइनस साइन आएगा. नाउ लेट्स राइट 2ab. अब मुझे abc मिल गए तो लिख दो प्लस 2bc प्लस 2ca. अब आप चेक करो जो गिवन है वही बनेगा. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 2 2s are 4 3s are 12xy माइनस 3 2s are 6 4s are 24yz माइनस 16zx. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने वाला है कि जो भी 2 टर्म्स के साथ नेगेटिव है, आप देखोगे कि उन दोनों टर्म्स में कॉमन वेरिएबल क्या है. एक्स वाई जेड में से क्या है जो दोनों टर्म्स में है, उस टर्म के आगे नेगेटिव आ जाएगा. तो मेरा ये क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर. और रफ में यहाँ पे आइडेंटिटी लिखोगे. मैं यहाँ पे अभी आइडेंटिटी 5 लिख रही हूँ, लेकिन वहां पे ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरी आइडेंटिटी लिखनी है कि आपने क्या यूज किया. तो माइनस इज इंपॉर्टेंट. अगर आपने यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा दिया तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, जो गिवन दिया हुआ है वो रॉन्ग हो जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर टू पुट द नेगेटिव साइन वेयर एवर इट नीड्स. जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलिए. मूविंग टू द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. ओके, नाउ 2x स्क्वायर. 2 किसका होता है, √2 का स्क्वायर, और किसी का तो होता नहीं, y का स्क्वायर. नाउ 8z स्क्वायर. अब 8 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता, तो मैं 8 के फैक्टर लिखती हूँ 2 into 2 into 2. ये एक फैक्टर तो कंप्लीट है, एक नहीं है. So I can write it as 2√2 का स्क्वायर. यस, करके देखो. 2√2 को 2√2
2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2s आर 4 और √2 को √2 से किया 2, तो आंसर आ गया 8। तो 8 को मैंने क्या लिखा, 2√2, मतलब 8 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया कि ये किसका स्क्वायर होता है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज दो टर्म जहां पे नेगेटिव साइन है और कॉमन इनमें वेरिएबल है x, इट मींस x वाली टर्म के आगे मेरा नेगेटिव साइन आएगा। नाउ लेट्स राइट द नेक्स्ट टर्म्स। सो नेक्स्ट टर्म्स मेरे पास क्या आई, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c एंड a। चेक कर सकते हो खोल के ब्रैकेट्स, जो गिवन है वही आएगा। √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर इज 8, then minus 2√2xy, 2 2s are 4√2yz minus 4 2s are 8xz। सो ये किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जो z और x है वो रूट के अंदर नहीं लिख देना है, उसका अलग से स्क्वायर है। ये √2 लिखते हुए x के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा देना, वो नहीं है स्क्वायर रूट में, सिर्फ √2 का स्क्वायर 2 होता है। स्क्वायर रूट x का स्क्वायर करोगे तो डेट विल बी x, बट वी हैव द टर्म x स्क्वायर हियर। तो स्क्वायर रूट लगाते हुए ध्यान रखना है कि इनके ऊपर x और z के ऊपर ना आए। And this part is important from the examination point of view also आता है, so please keep it in mind। पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली सेकंड पार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि बच्चे जब 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, होल क्यूब वाली आइडेंटिटी नंबर 6, a प्लस b होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। सो अप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1, 3 2s are 6x को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 1। सो व्हाट वी गेट, 8x क्यूब प्लस 1, 6 2s are 12x स्क्वायर, 6x को 1 से किया 6x। so this will be the answer। simply आइडेंटिटी को अगर याद है बस आइडेंटिटी लगानी है एंड सॉल्व। नेक्स्ट इज a माइनस b होल क्यूब, किस ब्रैकेट में आइडेंटिटी मेंशन करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चंस में आइडेंटिटी मेंशन करनी है। a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी a माइनस b होल क्यूब के लिए है, ये माइनस आप 3b के साथ नहीं लोगे। a माइनस b होल क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, 2 क्यूब 3 क्यूब 27, 3 2s are 6, 3s are 18ab into 2a minus 3b। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन होंगी, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2s are 36, a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3s are 54, a b स्क्वायर। हम जैसे एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर देना कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, और सेकंड टर्म में b को b से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम b स्क्वायर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, 3/2x plus 1 whole cube। Apply the identity, a cube, your a is 3/2x plus b cube plus 3a b bracket में a plus b। Now 3 cube is 27, 2 cube is 8, x का cube
प्लस 1, 3 3s are 9, x by 2. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. So what we get? 27 by 8 x cube plus 1, 9 3s are 27, x को x से किया x square, 2 को 2 से किया 4. इस पूरी टर्म को 1 से किया 9x by 2. So this will be your answer. Clear? Just identities को आपको याद रखना है. Put the values and get the answer. Moving to the next one. X minus 2 by 3y. X minus 2 by 3y whole cube. A minus b whole cube. So that is equals to a cube minus b cube minus 3a b a minus b. बार बार मैं कह रही हूं इस नेगेटिव को y के साथ नहीं लेना है. दिस इज आइडेंटिटी फॉर a माइनस b होल क्यूब. a क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड y क्यूब. ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा? माइनस 2xy ब्रैकेट में x minus 2 by 3y. So first term is x cube minus 8 by 27 y cube. Multiply the terms now. 2 x को x से किया x square y minus minus plus 2 2s are 4. Denominator में 3 x y square. So this will be your final answer. Clear to all of you? तो अभी हमने जो दो क्वेश्चंस किए, एक किया हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के, और 6th और 7th आइडेंटिटी यूज करी है इस क्वेश्चन में. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं उसमें क्या यूज करना है. ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. 99 आई कैन राइट इट एज 100 माइनस 1. तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पे लग जाएगी a माइनस बी होल क्यूब. a cube minus b cube minus 3a b a minus b. 100 का क्यूब, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 6, minus 1 minus 300. If you want, you can write it as 100 minus 1 99. एक स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे तो आप दो बार कर लो. चॉइस इज yours. So 1 2 3 4 5 6 minus 1, 3 को 300 को 100 से किया माइनस माइनस प्लस 300. इसमें 300 प्लस किए, यहाँ पे आ जाएंगे. So 1 2 3 0 300 माइनस 1 2 3 1. अब माइनस कर लो and you will get the answer. 1 2 3 300 minus 3 and 3 zeros are there and 1. 10 minus 1 9 2 0 10 minus 3 9. So 970 sorry 299. 970 299 will be the answer. Next is 102 cube. 102 को you can write it as 100 plus 2. So apply the identity a प्लस बी होल क्यूब. अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b a प्लस b. 3 बार मल्टीप्लाई करना है. नंबर ऑफ जीरोस विल बी 6. 2 क्यूब इज 8. 3 2s are 600. So 100 plus 2. 1 2 3 4 5 6 plus 8. 600 को 100 से किया. 6 2s are 1200. So add the terms 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 6. So 1200 and 8. 8021601. So you will get 1061208. 1061208. So calculation will be easy. अगर मुझे कहा हो कि without multiply solve this, तो आपको identity लगानी है. अब यहाँ पे तो लिखा है ना evaluate following using suitable identities, और लिखा जा सकता है
और विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग, कि बिना सही में मल्टीप्लाई किए बिना फाइंड करो, तो आपको आइडेंटिटीज यूज करके फाइंड करना है. नेक्स्ट इज 998 क्यूब. थर्ड पार्ट 998. You can write it as 1000 minus 2. Again, a minus b whole cube. So a cube minus b cube minus 3a b a minus b. So number of zeros will be 3, 6 and 9. 2 cube, 3 twos are 6, 1000 minus 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 and number of zeros will be 6 now. Minus minus plus 6 twos are 12,000. So दो टर्म्स नेगेटिव किया, 12,000 इसमें ऐड किया, so you will get 1, 2, 3, 4, 12,000. इनको ऐड किया 6, 000, 008. सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 जीरो 4, 1, 2, 000, 8, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 10 minus 8, 9, 9, 1, 1, 0. 10 minus 6, 9, 9. So what you get? 9940 11 992. So this is your answer. जो प्लस की टर्म्स है उन्हें ऐड कर लिया, माइनस किया उनको ऐड कर लिया एंड देन सब्ट्रैक्ट. सो ये हमने किया आइडेंटिटीज 5, 6 और 7 का यूज करते हुए. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फैक्टराइज. अब यहाँ पे देखो, जब फैक्टराइज करना है ये भी आइडेंटिटी 6 और 7 यूज हो रही है. कैसे? यहाँ पे a क्यूब b क्यूब, एक बार a स्क्वायर b a b स्क्वायर. अगर तो चारों टर्म्स पॉजिटिव है तो इट मींस a प्लस b का होल क्यूब वाली यूज हो रही है, क्योंकि उसी में पॉजिटिव थी. दो नेगेटिव दो पॉजिटिव है तो a माइनस b होल क्यूब यूज हो रहा है. पहले तो आपको पहचानना है क्वेश्चन को देख के कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है. अगर तो सारी टर्म पॉजिटिव है तो प्लस वाली लग रही है, और अगर नेगेटिव है दो तो a माइनस b. अब चलो देखते हैं. 8 2 का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब. उसके बाद मेरे पास होता है 3a b देन ब्रैकेट में a प्लस b. यही होता है. चलो एक स्टेप और चलते हैं आगे. a क्यूब प्लस b क्यूब. अब इनको मल्टीप्लाई कर लो. 3 2s are 6ab ब्रैकेट में 2a प्लस b. अब चेक करो, 6 2s are 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर आ रहा है. तो ये आइडेंटिटी थी a प्लस b होल क्यूब के लिए. तो यूर a इज 2a एंड b इज b. सो a प्लस b होल क्यूब. ब्रैकेट में आइडेंटिटी मेंशन करनी है कि आपने कौन सी यूज की. तो सबसे पहला स्टेप होता है कि पहचानना कि आपकी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी. अब नेक्स्ट में दो नेगेटिव है दो पॉजिटिव है. 8 2a का क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब. अब आप अगली टर्म्स अपने आप लिखोगे, ऊपर मत देखोगे क्या गिवन है. माइनस 3a b a माइनस b लिख दिया. अब आगे चलो. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 2s are 6ab 2a माइनस b. अब चेक करो क्या ऊपर वाली टर्म्स बन रही हैं. 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 6a b स्क्वायर बन रही है. तो ये किसके लिए? a माइनस b होल क्यूब. ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखोगे कि a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. मूविंग टू द थर्ड पार्ट, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर. ओके, दो नेगेटिव
दो पॉजिटिव, तो a माइनस बी होल क्यूब बनेगा। 27 3 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, a का क्यूब है तो 5a का क्यूब। नेक्स्ट -3a b a minus b. So what you get? a cube minus b cube. Solve करेंगे। 3 3s are 9, 5s are 45a, 3 minus 5a. Check करेंगे। 3 cube 27, 5a cube 125, 45 3s are 135, minus के 135a, minus minus plus 45 into 5 225, a को a से किया a स्क्वायर, सारी टर्म्स बन रही हैं। तो ये मेरे लिए है a माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखी जाएगी कि कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की। सो क्लियर टू एवरीवन। बस स्टेप टर्म्स को पहचानो पहले। ऑल पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको आइडेंटिटी आती है वो लगाओ और फिर चेक करो कि ऊपर वाली सारी टर्म्स बन रही हैं, देन राइट द आइडेंटिटी। चलिए फोर्थ पार्ट। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b। दो टर्म्स नेगेटिव आ गई तो माइनस वाली ही लगेगी, प्लस 108 a b स्क्वायर। अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। 64 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, दो टर्म नेगेटिव है, a क्यूब माइनस b क्यूब, सो -3ab। जब मुझे a b मिल गया देन पुट a minus b. So next step, 4a whole cube minus 3b whole cube. 3 3s are 9, 4s are 36ab, 4a minus 3b. चेक करेंगे। 4 का क्यूब 64 a क्यूब, 3 का क्यूब 27 b क्यूब, 36 into 4, 6 4s are 24, 12 and 2 144 आ गया, minus 144 a square b, minus minus plus 36 into 3 108 a b square। सारी टर्म्स आ गई, so it will become a minus b whole cube. So this is your final answer. Moving to the fifth part, last part, and this part is also important. तो ये वैसे तो ये क्वेश्चन भी important है कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। Last part is also important. 27p cube minus fifth part, 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4p. Okay, let's start. 27 3 का क्यूब होता है, 3p whole cube. 216 is 6 cube, so 1 by 6 cube. a cube minus b cube लग गया, minus 3a b ब्रैकेट में a minus b। पहली दो टर्म एज इट इज, 3p होल क्यूब माइनस 1 by 6 होल क्यूब। ना यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, 3 2s are 6, क्या बचा माइनस 3p by 2, 3p माइनस 1 by 6। चेक करेंगे। 3 का क्यूब 27p क्यूब माइनस 6 क्यूब इज 216, 3 3s are 9, minus 9p square by 2, right? Minus minus plus 3 2s are 6। क्या आप रफ में करके देख सकते हो अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो। 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस 1 by 4p, यही टर्म्स है। तो ये किसके इक्वल है, a माइनस b होल क्यूब। ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखना भूलना नहीं है।
वो आप लिखोगे कि कौन सी आइडेंटिटी आपने लगाई है यहाँ। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आइडेंटिटी 5, 6, 7 के बेस पे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, अब ध्यान, ये दो आइडेंटिटीज और आ गई हमारे पास जो हमने किया नहीं, इनको वेरीफाई करना है। अभी हमने होल क्यूब वाली करी थी, राइट? ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब। अब अगर दोनों का क्यूब अलग अलग है तो दीज आर टू मोर आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है। तो टोटल अब हो गई आपके पास 10 आइडेंटिटीज। 4 हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी, 4 आज पढ़ी और 2 ये वाली आइडेंटिटीज भी आने वाली क्लासेस में यूज होंगी, आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होंगी कहीं ना कहीं। तो इसको आपको याद रखना है। थोड़ी कम यूज होती है लेकिन ये वाली दोनों भी होती है यूज। चलिए, सो अब मुझे ये वेरीफाई करना है, तो मैं राइट हैंड साइड लूंगी और उसे सॉल्व करूंगी, तो वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड, तो वेरीफाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप विल बी एक्स को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस वाई को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया, माइनस एक्स को एक्स से किया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। So let's check the terms now. X cube यहाँ पे है। Now x square y, हमें पता है मल्टीप्लाई में 2 into 3 या 3 into 2 one and the same thing. तो x square y की जगह पे y x square, these two terms are same. आप वेरिएबल की पावर चेक करोगे, टर्म्स आगे पीछे लिखी हो सकती है। x की 2 है, यहाँ भी x की 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो these two terms are same. ये गलती नहीं करनी है कि इसको काटो नहीं। नाउ नेक्स्ट इज एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 1 वाई की 2, तो दिस इज द नेक्स्ट टर्म जो कि सेम है। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस रूट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी ऐसे होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी a square plus ab plus b square. This is the right hand side for the second part. So multiply करेंगे, पहले x को पूरी ब्रैकेट से x square plus xy plus y square, then minus y को पूरी ब्रैकेट से x square plus xy plus y square. कीजिए मल्टीप्लाई, x square को x से, x को x से प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नाउ नेगेटिव आउटसाइड, सारी टर्म्स के साइन चेंज होंगे, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स एज इट इज, वाई की 2 टर्म्स है, एट द पावर्स माइनस वाई क्यूब। नाउ चेक द टर्म्स, एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर 2 और वाई, दीज आर सेम थिंग, सेम टर्म्स, तो कैंसिल हो जाएंगी। Now x y square x y square, these are same terms, तो ये भी कैंसिल हो गई। तो मेरे पास क्या बचा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, हेंस रूट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिए। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।